Hi guys, in today's lesson we are practicing questions of integration. So let's begin. In the first question, you are supposed to find out the equation of the curve. याद करो चार equation. Equation of a line y equal to mx plus c. Tangent and normal differentiation. Equation of the curve में क्या होता है? Integration. So let's begin with this question. 3x power half and minus 6, that's what your dy over dx, right? Now how will you make dy over dx? Y. In order to get the equation of the curve, I'm going to integrate this 3x power 3 upon 2 divide by 3 upon 2 minus 6x plus c. बात समझ आई? Now I know that y is 2. ये वाला 2 ऊपर चले जाएगा 6x power 3 upon 2 divide by 3. That's what? 2 minus 6x plus c. What was the value of x? Sir, 9. So let's plug in 9 power 3 upon 2 minus 6 into 9 plus c. So मेरा बच्चा it's going to be 2 into 9 power 3 upon 2 minus 54. So what's the value? 0. So that means c is equal to 2. So my equation of the curve will be, अगर मैं इसको simplify कर रहा, I'm getting 2x power 3 upon 2 minus 6x plus 2. Did you all get this? Let's try the next question. It says find the equation of the curve. First thing, I'm going to bring this in the numerator. So it's going to become 3x minus 2 power minus half. Now in order to integrate, there is a linear equation. तो मैं क्या करूँगा मेरा बच्चा? I'm going to add power 1. Minus half plus 1 क्या होता है बच्चा? 1 upon 2. 1 upon 2 multiply by बच्चे the differentiation. So guys, this and this cancel out. और ये बन जाएगा बच्चे 4 3x minus 2. Got this? And then plus c. ये बात समझ आने के बाद I knew y was what? 11. I knew x was what? 2. तो 6 minus 2 क्या होता है? 4 plus c. So guys, my value will be 8 plus c. c क्या आ रहा है बच्चे आपका? 3. Got till this point? So my equation will be 4 under root 3x minus 2 plus 3. I hope it's clear to you. Let's practice more. Find the equation of the curve. First of all, I'm going to bring this over. 1 plus 2x power minus 2. Now, it's a linear equation. I can apply the bracket rule of integration. So y 3 1 plus 2x power minus 1 divide by minus 1 into 2 plus c. Now मेरा बच्चा minus 3 upon 2 1 plus 2x power 1. Got this? Plus c. Now I know that the value of y is what? 1 upon 2. And the value of x is what बच्चा? 1. Right? Plus c. So मेरा बच्चा 1 upon 2 minus 3 upon 2 into 3. This and this cancel out. Half plus half क्या हो जाएगा बच्चा आपका 1.
So my value of c is 1. So 3 upon 2, 1 plus 2x plus 1. Do you all get this, बच्चों? All good, all set? Let's practice more. अब ये सवाल गाइस, सबसे पहले तो आप इसको ऊपर ले आओगे. Now the integration of x cube will be x power 4 upon 4 and x power minus 2 upon 2 plus. Cautelous one. So मैं फाइनल आंसर में इंडिसेस को नेगेटिव नहीं छोड़ सकता. ऑल गुड, ऑल सेट एवरीवन? लेट्स प्रैक्टिस मोर. अब ये सवाल गाइस, 3x माइनस 2 पावर 5 की इंटीग्रेशन क्या आएगी? पावर एड डिवाइड बाय 6 इंटू 3 प्लस सी, राइट? सो गाइस 3x माइनस 2 पावर 6 अपॉन 18 प्लस सी. नाउ हमें लिमिट्स दी हुई, तो लिमिट्स में हमने क्या सीखा था मेरा बच्चा? हम दोनों लिमिट्स को प्लग इन करते हैं. 3x माइनस 2 पावर 6 अपॉन 18, उसमें c नहीं लिखते, वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है ना. मेरा बच्चा अब क्या होगा? पहले 1 डालो, तो आंसर आ रहा है 1 अपॉन 18. देन अगर मैं 0 डाल रहा हूँ तो मेरा आंसर क्या आ रहा है बच्चे? माइनस 2 पावर 6. अच्छा, बीच में माइनस होता है, सही है. देन माइनस 2 पावर 6 क्या हो जाएगा आपका? पॉजिटिव 64 अपॉन क्या हो जाएगा? 18. सो माई आंसर विल बी negative 63 upon 18. Do you all get this? That's what? negative 7 upon 2. क्या आपको ये बात समझ आई बच्चा? हाँ है. कोई भी इशू है तो प्लीज टेल मी. अब ये बात समझ आने के बाद मेरा बच्चा, अब मैं क्या करूँगा? लेट्स प्रैक्टिस मोर. अब ये सवाल है बच्चे, बोला हुआ है द लाइन 3y plus x equal to 70 is the normal to the curve at point P given that x coordinate of P is positive. ओके जी, ये आपका एक नॉर्मल है और हमें चाहिए ग्रेडियंट और कोऑर्डिनेट ऑफ P चाहिए. सबसे पहले नॉर्मल डिफ्रेंसिएशन से ग्रेडियंट आता है, उसका ग्रेडियंट का नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है. सबसे पहले मैं इस लाइन से ग्रेडियंट पिक करता हूँ. 3y is equal to minus x plus 17. Y is equal to minus x upon 3 plus 17 upon 3. So my gradient of normal is what? Negative 1 upon 3. So my gradient is negative 1 upon 3 of normal. तो एक्चुअल ग्रेडियंट जो कि dy ओवर dx क्या होगा? 3. 3 is equal to क्या? 5 minus 8 upon x square. So minus 2 minus 8 upon x square. Minus minus cancel हुआ बच्चा. x square is equal to 4. x की वैल्यू क्या आ रही? प्लस माइनस 2. अब प्रॉब्लम क्या है? बोला हुआ क्या है बच्चे? x आपका पॉजिटिव है. सो x आपका क्या हो जाएगा? 2. अब हमें कोऑर्डिनेट ऑफ P चाहिए. सो गाइस, अगर मेरा x 2 था, आप बच्चा इस इक्वेशन में डाल दो नॉर्मल की, क्योंकि नॉर्मल की इक्वेशन x एंड y के कोऑर्डिनेट से बनती है. तो अगर मैं x को 2 डालता हूँ बच्चा, राइट, सो मेरा बच्चा माई आंसर ऑफ दिस y विल बी 5. सो माई कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर 2, 4. अब मेरा बच्चा, मुझे इसको क्या करना पड़ेगा बच्चे? इक्वेशन ऑफ द कर्व के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा. 5 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? पहले मैं दोनों को ऊपर ले आता. नाउ व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ 5?
सर 5x माइनस 8x माइनस 1 अपॉन -1. So 5x plus 8 upon x equal to y plus c. अब बोला एट पॉइंट P, हमें क्या चाहिए? इक्वेशन ऑफ द कर्व एट पॉइंट P. ऐसा ही है. सो P के कोऑर्डिनेट 2,5 थे. मैंने y की जगह 5 लिखा, x की जगह 2 लिखा. सो मेरा बच्चा 5 is equal to 10 plus 4 plus c. So 5 minus 14 क्या होता है मेरा बच्चा? मुझे बताओ. -9. So my equation will be this. All good, all set so far. Let's practice more. So guys, in this question I'm supposed to find out the equation of the curve. अब तो piece of cake है. पहले इसको ऊपर लेके आ गए बच्चा. Now if I integrate this, power add होगा minus x plus c. y was 4, x was क्या बच्चा? 2 power minus 2, right बच्चा? So 4 upon 4 minus 2 plus c. So मेरा बच्चा 4 plus 1 is equal to c. c क्या आ रहा है? 5. My equation will be बच्चा 4 upon x square minus x plus 5. Do you all get this? So guys, ये सवाल भी अब ऐसे होगा. 2x plus 5 power half. लीनियर इक्वेशन है. अगर लीनियर इक्वेशन है, ब्रैकेट रूल ऑफ इंटीग्रेशन इज एप्लीकेबल. 3/2 into 2. Got this बच्चा. प्लस c इज इक्वल टू 1. अब मैं y की जगह पे 5 डालूंगा, x की जगह पे क्या डालूंगा बच्चा? 2. x की जगह पे क्या डालूंगा? 2 प्लस 5 पावर 3/2 डिवाइड बाय 3 प्लस c, राइट बच्चा? सो गाइस 4 प्लस 5 9 होता है. 9 पावर 3/2 ओवर 3 प्लस c. सो मेरा बच्चा 9 पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3. 9 आ रहा है बच्चे. एंड 5 minus 9 इज व्हाट बच्चा? आपका -4. सो माय आंसर will be this. All good, all set so far बच्चों. हाँ यार, आ जाओ यार और प्रैक्टिस हो जाए. Find the gradient at the point where x equal to 2. So gradient के लिए तो पहले हमें डिफ्रेंशिएट करना होता है. So मेरा बच्चा पहले मैं इसको कहाँ ले जाऊँगा? ऊपर ले जाऊँगा, -1/2. अब डिफ्रेंसिएशन में क्या होता था? ये आपका पीछे आता था. -1. 5x minus 6 पावर क्या आएगी? -3/2 इंटू क्या हो जाएगा आपका? 5. सो -5 5x minus 6 power 3/2. Now what's the value of x? -5, 5 2s are 10, 4 power 3/2. So -5 divided by 4 power, what's the value? -5/8. Got this? How will I integrate this मेरा बच्चा? इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले आप इसको ऊपर लेके आओगे, राइट बच्चा? जब ये आपका ऊपर आ गया बच्चे, देन पावर क्या आएगी? ऐड, क्योंकि लीनियर इक्वेशन थी. 1/2 into 5. सो मेरा बच्चा ये क्या हो जाएगा? 4 5x minus 6 डिवाइड बाय 5 प्लस c.
राइट। बट आगे आपको क्या बोला है बच्चे, लिमिट्स दी, तो लिमिट्स में c एलिमिनेट हो जाता है। लिमिट्स क्या है, 3 and 2। लेट्स प्लग इन 3, 15 माइनस 6 इज 9/5, ब्रैकेट बंद, देन माइनस। फिर मेरा बच्चा मैं दूसरी लिमिट 2 डालूंगा, तो अंडर रूट 4/5, व्हाट्स द वैल्यू, 4 3 is 12/5 minus 8/5, so my answer will be 4/5। Got this? अब इस तरह के सवाल जिस तरह से लिखे होते बच्चा घबरा जाता है। देखो f डैश एक्स दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, डिफ्रेंसिएशन दी। सो गाइस dy ओवर dx क्या दिया हुआ है, x माइनस 3/2 प्लस 1, और मुझे चाहिए fx क्या, इक्वेशन ऑफ द कर्व। सो आई एम गोइंग टू इंटीग्रेट दिस। माइनस 3/2 प्लस 1 क्या होता है, minus 1/2 divided by 1/2 plus x, got this, plus c is equal to 1। so मेरा बच्चा ये हो जाएगा minus 2x power minus half plus x plus c। now what was my y 5 है, और देखो जो इधर लिखा होता फंक्शन के अंदर वो क्या होता है, x। सो -2 और x पावर माइनस हाफ को मैं नीचे ले जाता हूँ तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स पावर हाफ, x 4 दिया है, प्लस 4 प्लस c। सो 5 माइनस 2/2 प्लस 4 प्लस c, गॉट दिस। सो 5